Hello everyone, this is Abhishek Mohanty and you are watching Padarth Vigyan. So students, welcome to lecture number 12 of the chapter Vectors. Lecture number 10 re ame discuss करथिले about the dot product or scalar product of two vectors and lecture number 11 re ame किछि question solve करथिले about that concept. And ame जानिचे जे two vectors can be multiplied in two different ways. The first one is the dot product or scalar product and the second method is cross product or vector product. तो आज मैं डिस्कस करिबा about this cross product or vector product. So let's get started. So students, I have written the definition of cross product. So just look at it. The vector or cross product of two vectors is defined as a vector whose magnitude is equal to the product of the magnitudes of two vectors and sine of the angle between them, and whose direction is perpendicular to the plane of the two vectors and is given by right hand thumb rule or right hand screw rule. So this is a big statement or big definition, but let us split this definition into a number of parts. So first ame पढ़िबा from this point up to this point. तो कौन लिखा है पढ़ो the vector or cross product ताने vector product जहाँ cross product से the vector or cross product of two vectors is defined as a vector ताने मन रख जदि आमे दुटा vector को multiply करिबा using cross product by using vector product आमे जहाँ result पाइबा the result is also a vector quantity किंतु आमे डिस्कस करथिले लेक्चर नंबर 10 रे जे the dot product of two vectors is a scalar quantity. For example, force dot displacement is equal to work done. Force गोटे vector, displacement गोटे vector, but their dot product is work which is a scalar quantity. सेथि पई dot product को आमे कहि थाउ scalar product. But when we multiply two vectors using cross product, the result is a vector quantity, and that's why cross product is also known as vector product. So कौन लिखा है ना the vector or cross product of two vectors is defined as a vector whose magnitude is equal to the product of the magnitudes of the two vectors and sine of the angle between them. ता माने suppose आम पाखरे दुटा vector अछि a vector and b vector and we want to multiply these two vectors using cross product. So आमे केम लिखिबा a vector cross b vector. So this is the symbol for cross product, a vector cross b vector. आमे जहाँ result पाइबा the result is also a vector quantity. ता माने से vector रो किछि magnitude थिबो किछि direction थिबो तो a vector cross b vector रो magnitude केते आसीबो ना a vector रो magnitude into b vector ro magnitude into sin theta and what is theta? Theta hochi angle between a vector and b vector. Theta hochi angle between a vector and b vector. Is that clear? So this is the magnitude of a vector cross b vector. Now look at the next part from this point to this point and whose direction is perpendicular to the plane of the two vectors. So हमें एबे डिस्कस कले फर्स्ट पार्ट रे में डिस्कस कले जे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b. एबे में डिस्कस करिबा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b काहे कि ना a क्रॉस b होची कोटे वेक्टर क्वांटिटी. तो कोन लिखा है ना द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b is perpendicular to the plane of the two vectors. ता माने आमे जो दुटा वेक्टर को मल्टीप्लाई करूचे यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट सेही दुटा वेक्टर जो प्लेन रे थिबे सेही दुटा वेक्टर जो प्लेन रे थिबे सेही प्लेन को परपेंडिकुलर हबो a क्रॉस b रो डायरेक्शन. सो आमे जानिचे जे सपोज जदि आमे गोटे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करिबा सपोज मैं एमति ड्रा कर दोची
Suppose imagine that this is x axis, this one is y axis, and this one is z axis. This is the three-dimensional Cartesian coordinate system. तो जदि मैं तीनटा एक्सिस ड्रॉ कले, here we will get three planes. गोटे होची x y plane, गोटे होची y z plane, आ गोटे होची x z plane. सो आमे तीनटा प्लेन पाइले. सो आमे जो दुटा वेक्टर को मल्टीप्लाई करिबा, से दुटा वेक्टर x y प्लेन थाई परंती, किंबा y z प्लेन ने थाई परंती, किंबा x z प्लेन ने थाई परंती. They may lie on xy plane, they may lie on yz plane, or they may lie on xz plane. तो से दुटा वेक्टर जो प्लेन रे थिबे, से प्लेन को परपेंडिकुलर हबो a क्रॉस b रो डायरेक्शन. इज दैट क्लियर? सो परपेंडिकुलर को मु एबे लिखिबी लाइक n कैप. तो n कैप रो मीनिंग कोन? जेतु मोटे कैप सिंबल लेछि ता माने एटा हो गोटे यूनिट वेक्टर. आमे जानि छे यूनिट वेक्टर कोन शो करे? इट शोज द डायरेक्शन. आ यूनिट वेक्टर रो मैग्नीट्यूड केते? 1. सो ए केस रे n कैप रो मीनिंग कोन? इट इज ए यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane containing a vector and b vector. ता माने जदि मैं एज्यूम करिबा जे a vector and b vector lie on the xy plane, ताले xy plane को perpendicular कोटा हबो ना z axis. Similarly, if we assume that a vector and b vector lie on yz plane, then yz plane को perpendicular की हबो x axis. Similarly, if we assume that a and b vector lie on xz plane, ताले xz plane को perpendicular की हबो ना y axis. ता माने जदि a vector and b vector xy plane रे रहिबे, then a vector cross b vector will be directed along z axis. किंतु a cross b रो डायरेक्शन along positive z हबो बा along negative z हबो, से विषय रे हमें केमति जानिबा? Similarly, if we assume that a vector and b vector lie on xy plane, ताले a cross b रो डायरेक्शन आसीबो along y axis. किंतु the direction particularly plus y रे जीवो ना minus y रे जीवो, जानिबा केमति? ता पई गोटे रूल अछि. से रूल रो नेम होची राइट हैंड थंब रूल बा राइट हैंड स्क्रू रूल. ता विषय में डिस्कस करिबा. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट मन रखो जे if we have two vectors a and b, and if you want to multiply them using cross product, then the result is a vector quantity. आउ से वेक्टर रो मैग्नीट्यूड केते आसीबो? a b sin theta, where theta is the angle between the two vectors, and the direction will be perpendicular to the plane which contains the two vectors. ठीक है? And now we will discuss about the right hand thumb rule or right hand screw rule. So students, एबे देखो स्क्रीन राइट साइड रे गोटे डायग्राम अछि. तो लुक एट दिस डायग्राम. आकु हमें कहिबा राइट हैंड स्क्रू रूल. तो आमे जो दुटा वेक्टर को मल्टीप्लाई करिबा, आमे देखिबा से वेक्टर भितरे स्मॉलेस्ट एंगल कोटा अछि. एबे देखो एडा होची वेक्टर a, this is vector a, and this is vector b. Is that clear? So this is the smallest angle between the two vectors. तो आमे देखिबा आमे a वेक्टर को b वेक्टर रे मल्टीप्लाई करूचे ना b वेक्टर को a वेक्टर रे मल्टीप्लाई करूचे. आमे देखिबा जे फर्स्ट वेक्टर कोन अछि. फर्स्ट वेक्टर a अछि ना b अछि. जदि मैं लिखुचे a क्रॉस b, ताले a होची फर्स्ट वेक्टर, b होची सेकंड वेक्टर. जदि मैं लिखिबा b क्रॉस a, देन b हबो फर्स्ट वेक्टर, a हबो सेकंड वेक्टर. सो आमे फर्स्ट देखिबा जे
भेक्टर रो ऑर्डर कौन अच्छे तो जदि आम लिखीचे ए क्रॉस बी ता माने ए होची फर्स्ट वेक्टर बी हो सेकंड वेक्टर तो आम ए कौन करबा आमे देख आम एटा होची राइट हैंड थंब रूल आपको लिखुची आर एच टी आर माने राइट हैंड थंब रूल राइट हैंड थंब रूल सो आम ए कौन करबा आमे आमर राइट हैंड रो जो पांचटा आंगुठी अच्छी जो 5 फिंगर्स अच्छी एक्सेप्ट थंब दिस इज थंब एटा होची थंब एक्सेप्ट थंब आउ जो चारटा रहिला फिंगर्स 1 2 3 4 एक्सेप्ट थंब को छाड़ला परे आउ जो चारटा फिंगर रहिला से फिंगर को आमे कर्ल करिबा से फिंगर को आमे कर्ल करिबा केमती such that A is rotated towards B A vector B vector आड़कू जो सेंस रे बा जो मोड रे रोटेट हबो आमे से मोड रे आम राइट हैंड रो जो चारिटा फिंगर अच्छी ताकू आमे रोटेट करिबा बा कर्ल करिबा देखो एठी মই जे कहिची जे आमे आगो लिखिचे ए वेक्टर तापर लिखिचे बी वेक्टर ता माने आमे ए वेक्टर को बी वेक्टर आड़कू कर्ल करेबा जदि मु लिखिथांती बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर तो मु कोन करथांती मु बी वेक्टर को कर्ल करथांती टुवर्ड्स ए वेक्टर लाइक दिस किंतु जेहेतु आमे बाहर करछे ए क्रॉस बी रो डायरेक्शन तो मु कोन करिबी ना ए वेक्टर को कर्ल करिबी टुवर्ड्स बी वेक्टर आ मु सेही डायरेक्शन रे मोर राइट हैंड रो जो चारिटा फिंगर अछि ताको मु कर्ल करिबी फिगर देख तुम देखि पारुथबो आमे केन करूचे आमे गोटे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे हम एम्ति कर्ल करूचे देखो जो चारटा फिंगर अछि राइट हैंड रो से माने मध्य एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे कर्ल करछंती इज दैट क्लियर तो जदि आमे एमिति कर्ल करिबा हमर जो थंब अछि थंब टा जो डायरेक्शन को फेस करिवो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी तुम देखि परथबे एठी द थंब इज अपवर्ड एठी कोन अछि थंब टा अपवर्ड अछि तो वर्तमान ये जो थंब अछि दिस थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी द थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज दैट क्लियर अगेन आई विल रिपीट आमे कोन करिवा आमे देखिबा जे आमे को वेक्टर को मल्टीप्लाई करूचे व्हिच टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड व्हिच वन इज द फर्स्ट वेक्टर तो आमे बे कोन करिबा फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर आडकू कर्ल करेबा थ्रू द स्मॉलर एंगल तमे एठी आर्गुमेंट करि पारो जे वी कैन रोटेट ए टुवर्ड्स बी इन दिस डायरेक्शन नो आमे सेमती कर्ल करि परिबा नाही बिकॉज़ according to this rule we have to rotate a vector towards b vector through the smaller angle जो एंगल टा स्मॉल थिबो आमे से एंगल रे ही ताको कर्ल करिबा बा रोटेट करिबा इज दैट क्लियर सो आमे हमर जो राइट हैंड अछि राइट हैंड रो जो चारटा फिंगर अछि एक्सेप्ट थंब बाकी जो चारटा फिंगर रहिला ताको आमे सेही सेंस रे से सेम सेंस रे कर्ल करिबा तो थंब जो डायरेक्शन रे पॉइंट करिवो दैट डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी आको हमें कहबा राइट हैंड थंब रूल सिमिलरली आ गोटे रूल अछि ताको कहबा हमें राइट हैंड स्क्रू रूल राइट हैंड स्क्रू रूल तो राइट हैंड स्क्रू रूल कोन ना सपोज हम पाखरे गोटे स्क्रू अछि एंड हमें कोन करूचे ना स्क्रू ड्राइवर रे ताको से स्क्रू को हमें कोन करिबा वी विल रोटेट द स्क्रू तो केमती रोटेट करिबा देखो हमें ये बाहर करूचे ए क्रॉस बी डायरेक्शन ता माने हमें ए को बी आडको रोटेट करिबा तो एटा होची एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन तो जदी एबे मु कोन करिबी जदी मु एबे ए जो स्क्रू अछि ताको मु स्क्रू ड्राइवर रे ए सेंस रे इन दिस डायरेक्शन जदी ताको मु रोटेट करेबी तो कोन हबो स्क्रूटा अपवर्ड मूव करिवो स्क्रूटा अपवर्ड मूव करिवो इज दैट क्लियर तो जदी स्क्रूटा अपवर्ड मूव कला दिस डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द स्क्रू will represent direction of A cross B. The direction of motion of the screw
will represent the direction of A cross B. Is that clear? So आमे राइट हैंड थंब रूल किंबा राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करके आमे आराम से कहि परिबा जे A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर रा डायरेक्शन केमती आसीबो. Is that clear? Okay, so this is all about the simple definition of cross product. तो आमे भी डिस्कस करिबा some of the example of cross product. जेमते हम डिस्कस करथिले जे work is the dot product of force and displacement, power is the dot product of force and velocity. Similarly आमे cross product रा किछि किछि example consider करिबा बा आमे डिस्कस करिबा. तो मन रख फर्स्ट एग्जांपल कौन ना तमे गोटे टॉर्क विषय पढ़िबो तो कमे कहबा टॉर्क. तो टॉर्क विषय आमे एबे डिस्कस करि परिबा नाही बट तमे ताको पढ़िबो वॉल्यूम 1 रे तमर अछि. तो टॉर्क होछि कोन गोटे वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस टॉर्क acting on a particle is the cross product of its position vector ताको हम लिखुचे r vector and the force acting on it, the force F vector acting on it. ता माने tau vector is equal to r vector cross F vector. tau vector equal to कते r vector cross F vector. तो टॉर्क विषय आमे डिटेल्स रे पढ़िबा फ्यूचर क्लास रे बट वर्तमान पई एग्जांपल हिसाब रे मन रखो जे जदी r vector देथिबो आ f vector देथिबो देन हाउ टू कैलकुलेट torque is equal to r cross f. Similarly आ गोटे फार्मूला अछि angular momentum जार सिंबल होउची L vector. Angular momentum L vector of a body or of a particle is the cross product of its position vector and the linear momentum p vector. So all of you have studied about the momentum in class 9 I think. So you have some idea about linear momentum, but what is angular momentum that will be discussed in class 11 but not in this lecture. But तमे मन रखता जे L vector होची कते L vector equal to r vector cross p vector. Similarly we have many examples of cross product, but तमे ए दिरे एग्जांपल मन रखता जदि किछि क्वेश्चन आसे then you can use this formula to calculate the values. तो एबे मैं डिस्कस करिबा about the different properties of the cross product. So the next topic is properties of cross product. So first property कौन? First property होची the cross product is not commutative. तो तारा मीनिंग कौन ना आमे प्रीवियस लेक्चर नंबर 10 रे डिस्कस करथिले जे द डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव त माने a डॉट b जहा b डॉट a सेम त माने जदी आमे वेक्टर ऑर्डर को चेंज कर दबा देन द डॉट प्रोडक्ट विल बी सेम. बट क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव त माने a क्रॉस b is not equal to b cross a. This is a very important point you have to remember. A cross B is not equal to B cross A. कहेंगे देखो A cross B रो मैग्नीट्यूड जहा B cross A रो मैग्नीट्यूड से सेम आसीबो जोड़ा होची केते
ना ए बी sin थीटा ए क्रॉस बी रो मैग्नीट्यूड ए बी sin थीटा बी क्रॉस ए रो मैग्नीट्यूड मध्य ए बी sin थीटा बट देयर डायरेक्शंस आर डिफरेंट ए क्रॉस बी रो डायरेक्शन एंड बी क्रॉस ए रो डायरेक्शन डिफरेंट काहे कि सपोज इमेजिन करो जदी एटा होची ए वेक्टर एटा होची बी वेक्टर a vector and this is b vector and imagine that the two vectors they lie on xz plane they lie on xz plane okay तो जदि मु a क्रॉस b रो डायरेक्शन डिटरमाइन करिबी यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल बा राइट हैंड स्क्रू रूल तो कोन हबो आई हैव टू रोटेट a टुवर्ड्स b आई हैव टू रोटेट a टुवर्ड्स b तो सेही केस रे a क्रॉस b रो डायरेक्शन केमति जीवो along the positive y axis a क्रॉस b रो डायरेक्शन जीवो along positive y axis बा मु कहि परिबी along j cap किंतु जदि मु b क्रॉस a रो डायरेक्शन बाहर करिबी ता माने मते b को a आड़ को रोटेट करिया पड़िबो आई हैव टू रोटेट b टुवर्ड्स a Now, say case re, the rotation will be clockwise, and if you use the right hand screw rule or right hand thumb rule, you can see that the direction of B cross A will be downward. B cross A will have direction along negative y axis, by along minus j cap. So, आमे कौन देखले एठी ना A cross B रो मैग्नीट्यूड जहा B cross A रो magnitude same but vector is not only specified by its magnitude only it is also specified by its direction जेहेतु A cross B रो direction is not same as the direction of B cross A that's why A cross B is not equal to B cross A तो आमे लिखि परिबा एठी जे A cross B will be equal to minus of B cross A minus of B cross A. कहेंगे ना A cross B direction is opposite to the direction of B cross A. That's why I have given a negative sign. So this is the first property of the cross product. Next, the second property is the cross product. The cross product is distributive. The cross product is distributive over addition ता माने a vector cross b plus c plus d and so on is equal to a cross b plus a cross c plus a cross d and so on and I may discuss madhya karthile je the dot product is also distributive over addition. Next property kon na vector product or the cross product or cross product of two parallel or anti-parallel vectors two parallel or anti-parallel vectors is a null vector ता माने suppose assume that a vector and b vector are parallel to each other or a vector and b vector are anti-parallel to each other. Parallel means they have same angle between them they have the same direction and the angle will be 0 degree and anti-parallel means they have opposite direction or the angle will be 180 degree. So theta 0 ho kimba theta 180 ho sin theta will be 0 sin 0 is 0 sin 180 is also 0 तो सेही केस रे a cross b रो मैग्नीट्यूड केते हबो 0 हो जिवो and it has some direction so हमें जानि छे if a vector has no magnitude and it has any arbitrary direction so
that is known as a null vector. So आम कौन डिस्कस कले ना जदि आम दुईटा parallel बा दुईटा anti parallel vector को आम multiply करूचे using cross product, then the result is a null vector or zero vector. Similarly, next property कौन ना vector product or cross product of a vector with itself is a null vector. The vector product of a vector with itself is a null vector. ता माने कौन जदि आम ए वेक्टर को ता निज सहित आम यदि क्रॉस प्रोडक्ट करिबा ए क्रॉस ए बाहर करिबा तो आंसर केते हेजिबो a रो मैग्नीट्यूड इनटू a रो मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम. आम जानि छे a वेक्टर एंड a वेक्टर भितर एंगल केते हो 0 डिग्री. सो a sin 0 and write n cap. तो आंसर हेजिबो 0 into n cap. Is that clear? ता माने आम अगेन कोन पाइले ना the cross product or the vector product of a vector with itself is a null vector. Is that clear? Now we'll discuss about the fifth property. Okay, so now we'll discuss about the fifth property number 5. Suppose imagine that a vector is perpendicular to b vector. It means the angle between them is 90 degree. If theta 90 degree hejibo, then sin 90 will be 1. तो से केस रे a vector cross b vector केते आसीबो a b sin theta into n cap, and sin theta is equal to 1 because theta is 90 degree. So answer आसीबो ab into n cap. ता माने if we have two perpendicular vectors, then the magnitude of their cross product is equal to the product of the magnitudes of the two vectors. Is that clear? So these are the important properties of cross product. Now we'll discuss about the last property. आम एबे डिस्कस करिबा about the cross product of orthogonal unit vectors. Orthogonal unit vectors रो मीनिंग कौन i cap j cap k cap. I cap j cap k cap. हमें जानी छे जे the unit vector along x axis is I cap, the unit vector along y axis is j cap, and the unit vector along z axis is k cap. तो आमे डिस्कस करिबा i j और k रो क्रॉस प्रोडक्ट केते आसीबो. सो फर्स्ट आमे देखिबा i क्रॉस j रो वैल्यू केते, j क्रॉस k रो वैल्यू केते, एंड k क्रॉस i रो वैल्यू केते. I cross j cross k, and k cross I. So remember that I cap, j cap, and k cap, all of them have the same magnitude because we know that the magnitude of a unit vector is 1. तो मैंने I cap रो magnitude is equal to 1, j cap रो magnitude is 1, k cap रो magnitude is also 1. And the angle between any two unit vectors ij or jk or ki, the angle is 90 degree because the three coordinates axes they are mutually perpendicular to each other. तो जदि में I cross j बाहर करिबा त मन देखो एबे सपोज एटा होची x axis, एटा होची y axis, and this one is z axis. X axis, y axis, z axis. I cap is directed along x axis, एटा होची I cap रो डायरेक्शन. J cap is along y axis, positive y axis, and k cap is along positive z axis. Is that clear? तो जदि आमे I cross j बाहर करिबा ता माने we have to rotate I cap towards j cap in the anti-clockwise direction. And if you use the right hand thumb rule,
आम देखो जे I क्रॉस J रो डायरेक्शन विल बी along the positive z axis बा along k cap तो एबे मैं लिखि परिबी I क्रॉस J को लिखि परिबी I cap रो मैग्नीट्यूड इनटू J cap रो मैग्नीट्यूड इनटू sin 90 इनटू n cap एठी n cap केते हबो एठी n cap हे जिवो k cap काहे कि ना I cap and J cap they lie on xy plane अब xy प्लेन को परपेंडिकुलर किए ना z एक्सिस एंड यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल आमे कोन देखले ना जदी हमें I को j आड़ को रोटेट करेबा देन बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल वी सॉ दैट और वी गॉट दैट द डायरेक्शन ऑफ I क्रॉस j विल बी अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस सेति पई मु n कैप जगह रे लिखली k कैप बिकॉज़ दिस k कैप इज परपेंडिकुलर टू xy प्लेन बिकॉज़ हमें I को j रे मल्टीप्लाई करूचे So I cap रो magnitude 1, J cap रो magnitude 1, sin 90 मध्ये 1. So 1 into 1 into 1 will be 1. 1 into K cap will be K cap. So I cross J रो value केते आसला K cap आसला. ठीक सही मेथड तमे निजे ट्राई करिवो. J cross K केते आसीबो I cap आसीबो. K cross I केते आसीबो J cap आसीबो. Is that clear? So एठी मैं लिखि दउची I cap cross J cap equal to K cap. Remember these values J cap cross K cap is equal to I cap then K cap cross I cap is equal to J cap and आमे किछि समय पूर्व डिस्कस करथिले जे the cross product is not commutative त माने I cross J रो वैल्यू जहा J cross I रो वैल्यू से हबोनी I cross J is equal to negative of J cross I त माने हम लिखि परिबे एठी J cross I केते हबो जदि I cross J होची K cap then J cross I केते हबो minus K cap काहे कि ना हमें डिस्कस करिचे जे A cross B is equal to minus of B cross A त माने A cross B रो डायरेक्शन is opposite to the direction of B cross A त माने जदि I cross J is along positive z axis ताहले J cross I will be along negative z axis similarly यदि J cross K is equal to I cap then K cross J will be minus I cap and if K cross I is J cap then I cross K will be minus J cap. Is that clear? So students you have to remember this cross product of the orthogonal unit vectors काहे कि ना maximum case रे हमें ए सबो I cross J, J cross K, I cross K, K cross I, K cross J एही फल सब टर्म विषय में प्रॉब्लम सॉल्व करिबा so you have to remember the cross product of these values okay so these are the important properties तो finally हमें गोटे फॉर्मूला डिराइव करिबा से फॉर्मूला कोन ना जेमते में डिस्कस करथले जदी A vector and B vector are given in component form suppose A vector is given as ax I cap plus ay j cap plus az k cap and B vector is given as bx I cap plus by j cap plus bz k cap then आमे A dot B केमिति बाहर करथले ना सिंपली ax bx plus ay by plus az bz गोटे सिंपल फार्मूला में पुट करथले एंड वी आर गेटिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ A and B बट आमे बे डिस्कस करिबा जदी A and B they are given in component form like this then how to find A cross B आमे A cross B केमिति बाहर करिबा so A cross B बाहर करिबा पई if A and B are in component form then A cross B कैलकुलेट करिया पई गोटे मेथड अछि ताको हम कहिबा डिटरमिनेंट मेथड so how to use this method to find A cross B let us discuss about that so हम कोन करिबा फर्स्ट लिखिबा ऊपर लिखिबा I cap then J cap then K cap okay अच्छा तो फर्स्ट अछि A वेक्टर तापर अछि B वेक्टर तो फर्स्ट रो रे आमे लिखले I J K
नेक्स्ट सेकेंड रो रे हम कोन लिखिबा फर्स्ट वेक्टर रो x कंपोनेंट y कंपोनेंट z कंपोनेंट फर्स्ट वेक्टर a अछि तो i कैप तळे मु लिखिबी a वेक्टर x कंपोनेंट j कैप तळे लिखिबी a वेक्टर y कंपोनेंट k कैप तळे लिखिबी a वेक्टर z कंपोनेंट दिस इज द सेकेंड रो थर्ड रो रे मु कोन करिबी सेकेंड वेक्टर रो x y z कंपोनेंट ता माने bx by bz एमिति लिखला परे मु एमिति गोटे सिंबल देबी आपको हम कहिबा द डिटरमिनेंट सिंबल ठीक अछि तो ए डिटरमिनेंट रो वैल्यू हम केमिति बाहर करबा देखो इनसाइड दिस टू बार्स वी हैव 3 रोज एंड 3 कॉलम्स तीनटा कॉलम अछि तीनटा रो अछि तो देखो हमें फर्स्ट कोन करबा जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम रो टॉप आई कैप अछि तो एम लिखिबा आई कैप लिखिबा आई कैप लिखला पर हमें कोन करबा करेस्पोंडिंग कॉलम करेस्पोंडिंग रो को इग्नोर कर देबा आई कैप लिखला पर हमें कोन करबा आई कैप रा करेस्पोंडिंग कॉलम को हमें इग्नोर करबा और करेस्पोंडिंग रो को मध्ये इग्नोर कर देबा तो इग्नोर कला पर आ कोन रहइबो ay az by bz ay az by bz आमे कोन करबा तांको क्रॉस मल्टीप्लाई करिकि सबट्रैक्ट करबा क्रॉस मल्टीप्लाई करिकि सबट्रैक्ट करबा ता माने केते हबो ay into bz minus az into by is that clear आगे लिखलो आई कैप लिखलो देन करेस्पोंडिंग कॉलम करेस्पोंडिंग रो को तमे इग्नोर कर देबो देन बाकी जो चारटा रहिबो क्वांटिटी ताको क्रॉस मल्टीप्लाई करिकि सबट्रैक्ट करिया को पड़िबो ताने ay bz minus az by तापरे j कैप आसीबो i कैप सला परे j कैप कम आसीबो j कैप पई हमें कोन करबा गोटे माइनस साइन दबा देखो i कैप पई प्लस साइन रहिबो j कैप पई माइनस रहिबो k कैप पई प्लस रहिबो देखो i कैप पूर्वरु प्लस अछि बा किछ नै माने प्लस अछि j कैप पूर्वरु मु लिखिबी माइनस त माने अब माइनस j कैप तो j कैप लिखला माने I have to ignore this column and this row ignore कला परे मो पाखे कोन रहइबो ax az bx bz ax az bx bz तो मु कोन करिबी अगेन सेमान को मु क्रॉस मल्टीप्लाई करिकि सबट्रैक्ट करिबी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड सबट्रैक्शन तो केते हिजबो so we'll get how much we'll get ax bz minus az bx this is the second term तापरे k कैप पई प्लस साइन अछि देखियो प्लस k कैप ता माने ए कॉलम को इग्नोर करबो ए रो को इग्नोर कर देबो you will get ax ay bx by again cross multiply and subtract तो केते हिजबो ax by minus ay bx ax by minus ay bx so ए मेथड रे हमें a क्रॉस b रो वैल्यू बाहर कर परिबा तो एबे हमें ए मेथड रे गोटे क्वेश्चन सॉल्व करबा सो दैट तमनकर डाउट क्लियर हे जिवो सपोज मैं लिखु छी एठी a वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप minus 4j कैप plus k कैप and b vector equal to minus I cap plus 2j cap minus 3k cap तो एबे में कोन करिबा ना a क्रॉस b रो वैल्यू बाहर करिबा यूजिंग द मेथड ऑफ डिटरमिनेंट तो स्टेप्स कोन आगे लिखिबा I cap j cap k cap तो जेहेतु हमें फर्स्ट a अछि तापर b अछि हमें a को b रे मल्टीप्लाई करू छी तो आगो कोन करिबा ना सेकंड रो रे लिखि दबा ax ay az तो x केते 3 ay केते -4 az केते 1 तो लिखबे एठी 3 -4 1 ता तळे कोन लिखिबा b वेक्टर रो x y z कंपोनेंट तो bx केते -1 by केते 2 bz केते -3 लिखबे एठी -1 2 -3 इज दैट क्लियर एमित लिखला परे हमें कोन करिबा
आई कैप पे प्लस साइन, जे कैप पे माइनस साइन, के कैप पे प्लस साइन। तो फास्ट लिखा आई कैप बा प्लस आई कैप। तो करेस्पॉन्डिंग कॉलम करेस्पॉन्डिंग रो को हमें इग्नोर करबा। बाकी कौन रहिबो -4 × 1 2 × -3 -4 × 1 तापरे सॉरी हां -4 1 2 -3 तबे कोन करिया को क्रॉस मल्टीप्लाई करिकि सबट्रैक्ट करिया को पड़िबो। ता माने कोन लिखिबी -4 को मु 3 रे मल्टीप्लाई करबी सॉरी -3 रे मल्टीप्लाई करबी -4 × -3 तापरे माइनस दबा 2 × 1। इज दैट क्लियर? तापरे जे के पई माइनस सिंबल अछि तो करेस्पॉन्डिंग कॉलम करेस्पॉन्डिंग रो को मु इग्नोर कली कोन हेबो 3 1 -1 -3। तो अगेन हमें कोन करबा ना ओके हमें कोन करबा ना 3 को मल्टीप्लाई करबी -3 रे देन 3 को मल्टीप्लाई करी -3 रे देन माइनस साइन देबी -1 को मल्टीप्लाई करबी +1 रे। इज दैट क्लियर? तापर आसीबो प्लस के कैप। अगेन इग्नोर दिस कॉलम दिस रो आ कोन हेबो 3 -4 -1 2। तो 3 को 2 रे मल्टीप्लाई करबा -1 को -4 रे मल्टीप्लाई करबा एंड सबट्रैक्ट करबा। सो 3 × 2 -1 × -4 that is equal to I cap into -4 × -3 will be 12, then 2 × 1 will be 2, so 12 - 2 minus j cap, 3 × -3 will be -9, then -1 × 1 will be -1 and एठी गोटे माइनस अछि तो सेटा हे जिवो +1 हे जिवो plus k cap into 3 × 2 is 6, then -1 × -4 is +4 तार पूर्व गोटे माइनस अछि दैट जिवो -4 हे जिवो। सो आंसर कतेला 10 I cap, then -9 + 1 will be -8 तार पूर्व गोटे अछि नेगेटिव साइन तो हे जिवो +8 j cap and 2 k cap। सो स्टूडेंट्स हमें देखले जे डिटरमिनेंट मेथड यूज करिकि हमें केमिति दुईटा वेक्टर रो क्रॉस प्रोडक्ट हमें डिटरमाइन करि परिबा। ओके सो दीज आर द इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सो ए फार्मूला बेस्ड करिकि बहुत किछि क्वेश्चंस आसी परिबो तो ए मेथड को भलसे प्रैक्टिस करिवो। तो एबे हमें फाइनल हेडिंग बा फाइनल टॉपिक ऊपर डिस्कस करिबा फाइनल की पॉइंट डिस्कस करिबा। से की पॉइंट कौन? द की पॉइंट इज द ज्योमेट्रिकल significance of cross product, geometrical significance of cross product। okay, geometrical significance of cross product। So what is the geometrical significance of this cross product? Suppose we have a parallelogram and the two adjacent sides of the parallelogram represent the vectors a and b, so suppose this is P, this is Q and okay then complete कर देबी। if I complete this parallelogram then this point will be R and this point will be S, P Q R S। ठीक अछि। so a parallelogram रो PQ side is vector A, PS is vector B and the angle between them is theta। ठीक अछि। तो ए parallelogram रो एरिया केते हबो हमें केमती डिराइव करिबा। सो हमें जानचे if we draw this diagonal, if I draw the diagonal here then this diagonal will divide the parallelogram into two equal triangles। triangle SPQ रो एरिया जहां आसीबो triangle SRQ रो एरिया सेम आसीबो। ता माने जदि हमें triangle SPQ रो एरिया कैलकुलेट कर दबा then multiplying 2
we will get the area of the parallelogram. तो गोटे ट्रायंगल एरिया फॉर्मूला कौन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो मुझे कौन करी ना पॉइंट एस रु गोटे परपेंडिकुलर ड्रॉ करी टू द बेस पी क्यू दिस इज द परपेंडिकुलर ठीक अच्छे आपको लिखुँ एस एम तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एस पी क्यू केते आसीबो ना हाफ इंटू बेस माने पी क्यू इंटू हाइट माने एस एम ठीक अच्छे तो हाफ इंटू पी क्यू माने कौन पी क्यू होची लेंथ ऑफ दिस वेक्टर ए ताको मैं लिखि परिबी द मैग्नीट्यूड ऑफ ए और एस एम केते हबो लुक एट द ट्रायंगल एस एम पी इन ट्रायंगल एस एम पी sm by sp is equal to sin theta sm by sp equal to sin theta p by h equal to sin theta that implies sm equal to sp sin theta और sp होची b वेक्टर मैग्नीट्यूड ताकू लिखि परिबी b sin theta तो sm जगह रे लिखि परिबी b sin theta and a b sin theta कौन ना a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर रा मैग्नीट्यूड तो हमें कौन पाइले एठी ना एस पी क्यू ट्रायंगल रो एरिया केते हाफ ऑफ ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड सिमिलरली एस आर क्यू रो एरिया से सेम आसीबो आ जदि मैं पचारिबी एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस केते आसीबो इट विल बी 2 into area of triangle SPQ by 2 into half A cross B magnitude that is equal to A cross B magnitude. तामाने this is the geometrical significance of the cross product. तामाने if the two adjacent sides of a parallelogram represent two vectors then the area of the parallelogram is equal to the magnitude of cross product of the two vectors. So students cross product उपरे जहाँ सब important points ला ताकू मैं discuss कली and in the next class आमे जदि आउ किछि बाकी रही थिबो तापर discuss करिबा and आमे किछि question solve करिबा about cross product. So again we will meet in the next class. Till then have a nice day and bye bye.